specially organized by IRIS International Institute for Regional and International Studies. IRIS is dedicated to fostering dialogue and critical thinking by organizing such webinars on pressing national and international issues. Through these sessions, we seek to engage the scholars, practitioners, and youth in meaningful discussions that deepen the understanding and inspire informed action. Today's webinar takes up an important and timely theme, the role of superstructure in Middle East geopolitics, with particular focus on the recent development under the title Superstructure Under Fire, Israel's attack on Qatar and the shifting Middle East order. This session will unpack the complexities of power, politics, and shifting alliance in the region. To develop insights on this, it's an honor to introduce the speakers of today's session, Dr. Munawar Hussain, who is an assistant professor at Qasim University. For more than 2 decades, he has been engaged in teaching and research in the fields of North American and African studies. Dr. Hussain is widely respected for his scholarship on global affairs and socioeconomic challenges, and is also well known as a TV analyst who brings clarity to complex issues for the wider public. In addition, he contributes internationally as a vice president and sector director with United Nations organizations, reflecting his commitment to global cooperation and development. His unique blend of academic depth, media presence, and international engagements make him a truly inspiring voice. Thank you so much, sir, for joining us today. We truly look forward to your valuable insights on this important topic. The floor is now yours. Thank you very much. I thank all of you, especially your organization and Shafqat Rasool and the whole team for providing me an opportunity to have a debate with you, because I strongly believe that debate gives knowledge to all sides, because in our teaching, we also believe that teaching is not a one-way, it is always a two-way traffic. And we learn from you people and you learn from us. So again, this is a great opportunity to have a debate with you on the issue that is assigned to me regarding the Middle Eastern politics and the role of superstructure. And I'll take a start with a theoretical framework. Rather, I would like to give a brief introduction and slightly explanation regarding the superstructure, what is superstructure, and how this superstructure plays a role in international politics. There are different paradigms in international politics. We listen about, we read about realism, liberalism, Marxism, modernism, postmodernism, and among them is the neo-Marxist. Is it okay if I speak in English, or I have to have debate in Urdu? Sir, it's up to you. You can use both languages. Okay, fine. Thank you. So, realism believes, because these are different theoretical frameworks in international politics. Why do we need these frameworks? We need these frameworks to fulfill our task, being a student of international politics, being a scholar, being a scientist, because there are certain tasks that we need to perform. Number one is description. When I say description, it means to answer the question, what is out there? So we try to find out and to figure out the puzzle, the problem which exists in international politics. And this task of describing problem itself is a very complex task. It is not an easy task. Reproduction of something or to working on the issue which has already been explained and discussed in literature is not a research problem, but what is missing in the literature, that is a research problem. If there is a puzzle in the literature, to solve the puzzle and to answer the question, what is a research problem?
Second important task of a scientist is to provide an explanation. And when I say providing explanation, it means to answer the question why. Why different phenomena are occurring? What are the reasons behind them? To answer the question why. And the third one is prediction. When you have this explanation, you have reasons, factors based on empirical evidences. On the basis of that explanation, you can predict about the future, because explanation gives you the pattern in the behavior. And once you know the pattern in the behavior, you can predict about the future. And the third one is prescription. Once you have described the problem and you know the causes of the problem and you know about the future, then you give prescription how to resolve that problem. So these are 4 important tasks. And in order to perform these tasks, we need theories. And among theories, realism is the most dominant theory in international politics, because many powers, they develop their narratives based on realism to justify their actions. For instance, in the case of Iraq war, Americans, they said, since there was an imbalance of power, so therefore America had right to attack Iraq. So this realism or liberalism justifying the position of the dominant class or the dominant states in international politics. Here, Marxism brought revolution. And Marxism went altogether in an opposite direction. Because liberalism talks about nationalism, realism talks about national interest, while Marxism talks about globalization. And it was Marxism that predicted about globalization for the first time. But that globalization was based on assumption that there would be a class-less society in the world. But we are observing liberal globalization, free market economy based globalization in the world. So here Marxism failed. In reaction of that, another school of thought came, which originated from Marxism, but slightly it differs from the very assumption of Marxism, which is known as neo-Marxism, जिसको हम neo-Marxism कहते हैं. And they said that Marxism was totally based on one variable, and that was bold hypothesis that only mode of production brings change in socio-political circumstances. यानी जो मईशत है वो आपकी सियासी और समाजी माहौल के अंदर तब्दीली रूनुमा करेगी. लेकिन जो न्यू मार्क्सिस्ट थे, they brought another variable which is in fact very important, and that variable is superstructure. They believe that it is true that mode of production, your wealth, plays very important role in the development of your society, in developing certain political circumstances. वो कहते हैं ना, जब हुस्न आता है तो नज़ाकत आ ही जाती है, जेब में जब पैसा हो तो you can buy anything. लेकिन उनका ये ख्याल था कि जो आपकी तारीख है, जो आपका तमद्दुन है, जो आपके अक़दार हैं, जो आपका belief system है, they all play very important role in the development of society. They play very important role even in your behavior and shaping up your behavior as a nation. और ये चीज आपको इस वक्त मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स के अंदर नजर आ रही है कि मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में जो सुपर स्ट्रक्चर है, दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल in Middle Eastern geopolitics. And that superstructure is playing the central role in Israeli behavior, in shaping up Israeli response to the Middle Eastern countries, और जिस तरह से वो behave कर रहा है दुनिया की सियासत के अंदर. It is all because of that belief system, that because of that superstructure. Now, why United States of America is supporting Israel? Again, it is all because of the superstructure, the belief system. Why Indians, they have antagonistic relationship with Pakistan and other South Asian nations? All because of the superstructure. And why OIC was summoned in Qatar?
again because of the superstructure. So superstructure plays very important role in doing international politics, especially the geopolitics. और ये realism का कहना कि this is the national interest that drive or pushes nation to a certain direction गलत साबित होता है. Let me give you a very simple example. क्वेश्चन ये है, इस वक्त डिबेट हो रहा है बड़ा अमेरिका के अंदर, और अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं लाइक जॉन मीरशाइमर, जेफरी सैक्स, कर्नल डगलस, ऑल दे आर डिबेटिंग कि क्या इजराइल उनके लिए स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी है या दैट इज द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका टू गो विद इजराइल. एंड द डिबेट tilting towards the point of view that Israel is becoming a strategic liability for the United States of America. How? कतर वो मुल्क है जो अमेरिका का नॉन नेटो वाला है. कतर वो मुल्क है जो इस अमेरिका की इकोनॉमिक रिसेशन एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन के अंदर, जहां पे $37.7 ट्रिलियन का कर्जा, 122% of GDP, America is under debt, on which IMF reports that this is the situation where no nation can come back. जहाँ पे society is fragmented, American influence is compromised because of the unilateral actions and wars in Afghanistan, in Iraq, in Yemen, in Syria, in Libya, फिर यूक्रेन के अंदर. तो इस आलम में when American economy is not performing good, it is इसका growth rate it is about 2 to 3%. वहां पे कतर is going to invest $2.2 trillion in America. Qatar is the biggest buyer of Boeing jets from United States of America. और Qatar is a place which always helped out America in negotiation with the Taliban, in negotiation with Hamas, and even sometimes in negotiation with Iran. That is purely in favor of strategic interest of America. वहां पे हमला करना इजराइल का, और अमेरिका को मजबूरन इजराइल के साथ खड़ा होना, जिसकी वजूहात में लेटर ऑन बताऊंगा, and you would be able to understand how superstructure plays important role in the behavior of America vis-a-vis Israel. ये strategic liability है. And let me give you one more example. आपने नाम सुना होगा चार्ली क्रिक का, जिनकी रिसेंटली असैसिनेशन हुई, फार राइट एक्टिविस्ट थे अमेरिका में. उन्होंने अपने लास्ट टाइम जो उनके एड्रेसेस हैं या पॉडकास्ट हैं या उनके जितने भी फॉक्स न्यूज़ के, आपके पास वो क्लिप्स आ रही होंगी डिफरेंट सोशल मीडिया, जो आप पे इजराइल के हवाले से जा रहे थे. यहाँ तक कि उनका ये कहना था कि जो कुछ गजा में हो रहा है वो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है, बिकॉज अमेरिकन लेड जो ऑर्डर है दुनिया में, उससे उसकी जड़ें खराब हो रही हैं, कमज़ोर हो रही. और ये अजम्पशन मैं काफ़ी अरसे से बयान कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आ रही है? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Carry Yes, sir, you are audible. Very Okay. much audible. Okay, thank you. जो सवाल वहां पे उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि क्या इजराइल स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी है या अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अंदर है. तो चार्ली क्रिक का जो आखिरी अजम्पशंस थी वो ये थी कि जो अमेरिकन लेड वर्ल्ड ऑर्डर है, इट इज बीइंग डिस्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ इजराइल. And there are certain influential people in America who are the agent of Israel. हम एप्स्टीन का भी ले रहे, मोसाद का रहा है, बिकॉज अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी गोल्स को देखें तारीखी तौर पे तो 3 फॉरेन पॉलिसी गोल्स आपको नजर आते हैं: नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड द प्रमोशन ऑफ अमेरिकन. और अमेरिका 1779 में या 1776 में, और 1779 इसलिए कहते हैं कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था,
उस वक्त उनके जो फाउंडिंग फादर्स थे, वेदर वॉशिंगटन था, जेफरसन था, जैक्सन था, हैमिल्टन था, they all believe that they are going to build a city upon a hill, a perfect society for others to follow. तो वहां पे आइडियलिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट था। इवन सेकंड और फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सबसे ज्यादा प्रिंसिपल अमेरिका की तरफ से आया, दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। And America during the Cold War period was known as a champion of democracy and champion of freedom of speech and human rights. तो प्रमोशन ऑफ अमेरिकन आइडियल्स की वजह से अमेरिका का तासुर दुनिया की पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा था। लेकिन आज वही ह्यूमन राइट्स वायलेशन वी आर ऑब्जर्विंग इन द केस ऑफ कश्मीर, इन द केस ऑफ पैलेस्टाइन, ह्यूमैनिटेरियन लॉज की वायलेशन नजर आ रही है और अमेरिका को उस पर आंखें बंद करनी पड़ रही हैं। दैट इज badly affecting the image of America in the world politics. और याद रखें कि जो तासुर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन जो पावर, इफ यू हैव अ पावर एंड यू आर वेरी पावरफुल, बट आपका तासुर कमजोर वाला है, जो कि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द ओआईसी समिट मुस्लिम दुनिया का बन गया, जो उम्मीदें वाबस्ता थी वो पूरी नहीं हुई। ये तासुर बड़ा खतरनाक है। हालांकि इस ओआईसी के अंदर टर्की है जो कि मिलिटरीली इज वेरी पावरफुल, पाकिस्तान है जिसने रिसेंटली इंडिया को लेसन्स टीच किया है, इसी तरह से जो ईरान है 12 दिनों की जंग में उसने घुटने टेके हैं इजराइल के, और इसी तरह से जिसके पास कैपेबिलिटी नहीं है लेकिन विल की वजह से, जिस तरह यमनीज दे आर रिटेलिएटिंग अगेंस्ट इजराइल, इसी तरह इजिप्ट आपका है, वेल्दी नेशंस हैं लाइक खुद कतर है, सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, इंडोनेशियन मिलिट्री पावर इज अ नोन पावर। लेकिन जो तासुर आपका गया है वो तासुर बड़ा कम, लिहाजा तासुर बड़ा इम्पैक्ट करता है। और वेपन के बारे में कहा जाता है अगर आपके पास वेपन है लेकिन अगर कैपेबिलिटी के साथ आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो वो आपके काम नहीं आने लगा। बिकॉज वेपन का काम है अगले को डिटर करना, आपके दुश्मन को रोकना कि वो आपके ऊपर हमला आवर ना हो। लेकिन अगर आपका तासुर खराब है तो हर कोई आपका हमला करेगा। और इसी वजह से मैनी एनालिस्ट नाउ दे आर प्रेडिक्टिंग इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, माई सेल्फ आई एम प्रेडिक्टिंग इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि व्हेन इजराइल इज गोइंग टू अटैक अनदर मुस्लिम कंट्री अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ एप्रीहेंडिंग द लीडरशिप ऑफ हमास। तो कहने का मकसद ये कि ये तासुर बड़ा खतरनाक चीज है और बड़ी सेंसिटिव चीज है जिसका अमेरिका इस वक्त खमियाजा भुगत रहा है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अमेरिकन अलाइनमेंट विद इजराइल। अब इसमें सुपर स्ट्रक्चर का क्या किरदार है? अमेरिका की कहानी सुपर स्ट्रक्चर के अलावा भी है जो कि मैं शायद आपको थोड़ा सा इशारा दे दूं, लेकिन पहले इजराइल पे आते हैं कि हाउ सुपर स्ट्रक्चर इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इजरायली बिहेवियर। इजराइल के अंदर यहूदियों के बारे में आपने सुना होगा कि 12 कबीले हैं, और इस वक्त जो कबीला है आपका, जो 2 कबीले इजराइल के ऊपर रूल कर रहे हैं उसमें यहूदा कबीला है और दूसरा बिन्यामीन जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे, जिनको ये बेंजामिन कहते हैं, बेंजामिन ट्राइब। तो इस वक्त जो ट्राइब है, जो इस वक्त 2 ट्राइब्स जो हुकूमत कर रहे हैं, एक यहूदा का ट्राइब और दूसरा बेंजामिन ट्राइब, और नेतन्याहू मिक्सचर है दोनों का। शायद इनकी एक मदर बेंजामिन है और फादर यहूदा है, या फादर बेंजामिन है या मदर यहूदा है। तो दीज 2 ट्राइब्स आर इन पावर, और उनका जो नरेशन है जस्टिफाइंग देयर एक्शन अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस एंड अदर अरब वर्ल्ड, और ईरान पे हमला, यमन पे हमला, लेबनान पे हमला, उसको जस्टिफाई करते हैं विद द जोशुआ बुक, कि जोशुआ किताब के मुताबिक, एंड दिस जोशुआ बुक हैज बीन रिफर्ड टाइम एंड अगेन बाय जॉन मीरशाइमर एंड टाइम एंड अगेन बाय जेफरी सैक्स, के पूरी दुनिया में सिर्फ इंसान यहूदी हैं, and they are all animals. Some are good animals, some are bad animals. The animals who are supporting Israel, they are the good animals. The animals who are opposing Israel, they are the bad animals. और ये सारी सरजमीन इनकी है, और यहाँ से वर्ल्ड गवर्नमेंट कायम होगी और इसका दारुल हुकूमत यरूशलेम होगा। जब ज़ायनिज़्म का वजूद आता है 1896 में,
तो उस वक्त वर्ल्ड गवर्नमेंट का पूरा प्लान दिया जाता है किस तरह से जेरूशलम वुड बी द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड हाउ दे वुड एस्टेब्लिश वर्ल्ड गवर्नमेंट इन दिस वर्ल्ड। और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर हमें नजर आती है, वो पहला जो इनका प्राइम मिनिस्टर था बेन गुरियन, ही गेव अ स्टेटमेंट इन 1918 जिसमें ही टॉक्ड अबाउट द ग्रेटर इजराइल के उसकी सरहदें क्या होंगी। तो लिहाजा जो बिलीफ सिस्टम है दैट इज शेपिंग अप द एक्शंस एंड बिहेवियर एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ इजराइल, and this is the reason when two state solution was given by the United Nation Security Council resolution in 1967, और उसके बाद बिल क्लिंटन के वक्त में जो मुआहदा साइन हुआ यासिर अरफात और इजरायली प्राइम मिनिस्टर के दरमियान में, जिसमें 2 रियासती हल की बात की गई। पाकिस्तान की भी ऑफिशियल पोजीशन यही है, सऊदी अरब एंड बाकी अरब वर्ल्ड की भी यही है। उसको इस वक्त की इजरायली हुकूमत निगेट कर रही है। क्यों निगेट कर रही है? बिकॉज उनके नजर में 2 रियासती हल का मतलब है गिविंग अप the concept of greater Israel, which is the promise given by God कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट कायम करेंगे, मसीहा आएगा और पूरी दुनिया के अंदर उनकी अजारादारी कायम हो जाएगी। मैं आपके सवालात लूंगा बट एट द एंड इसको मैं जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ। तो लिहाजा जो बिलीफ सिस्टम है इजराइल के अंदर वो बहुत ज्यादा कारफरमा नजर आ रहा है उनके बिहेवियर और उनके एक्शंस के अंदर। इसी तरीके से अगर आप अमेरिका को लें तो अमेरिका की जो सपोर्ट है इजराइल की, उसके पीछे सिर्फ स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट नहीं है। इफ यू गो थ्रू द डॉक्यूमेंट्स ऑफ पेंटागन एंड स्टेट डिफेंस डिपार्टमेंट इन 1960s, they have clearly mentioned that Israel is a strategic post of America, and whenever America would like, they would use the strategic post, weapon and military force of Israel in the Middle East for American interest. लेकिन फिर हम देखते हैं कि बड़ी अजीब बात होती है। 1967 में अमेरिकन सर्विलेंस शिप जिसको लिबर्टी कहा जाता है, वो सर्विलेंस पे निकलती है और इजराइल उन पे अटैक करता है और शिप के अंदर जो मैरिन्स होते हैं वो भी मारे जाते हैं और शिप भी डूब जाती है, लेकिन अमेरिकन उसको हेल्प आउट नहीं कर सकते। सवाल ये है कि इजराइल आपकी स्ट्रेटेजिक पोस्ट है तो फिर उसने हमला क्यों किया? और उसके बाद अब तक जिस तरह से अमेरिका मजबूरन सपोर्ट कर रहा है इजराइल की, वो क्यों कर रहा है? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज द सुपर स्ट्रक्चर। खुद क्रिश्चियनिटी के अंदर देयर आर मेनी एविडेंसेस जो कि पुश करता है अमेरिकन रूलर्स को टू सपोर्ट इजराइल, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट जो क्रिश्चियन जायनिज्म है, दे हैव गिवन बर्थ द ज्यू जायनिज्म इन द वर्ल्ड। और लेट मी गिव यू 2-3 रेफरेंसेस जल्दी जल्दी, जो कि मैं चाह रहा हूं कि इसको मैं खत्म करूं और फिर आप सवालात उठाएं। जेनेसिस जो बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट है, जेनेसिस चैप्टर 14.2, इसके अंदर कहा गया है कि जो इजराइल को बरकत देगा खुदा उसको बरकत देगा। और इसी के तहत, इसी नजरिए के तहत वो कहते हैं कि हम पे फर्ज है, मजहबी फरीजा है हमारा कि वी हैव टू स्टैंड विद इजराइल, चाहे वो सही काम कर रहा है या गलत कर रहा है, या वो कत्लो एथनिक क्लिंजिंग कर रहा है या जो भी कर रहा है। दूसरा रेफरेंस इनका जकरिया चैप्टर 14 अगेन पॉइंट 3, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जेरूशलम के अंदर सारी अकवाम जमा होंगी इनसे जेरूशलम से लड़ने के लिए, लेकिन खुदा उन सबको शिकस्त देगा। फिर तीसरा रेफरेंस एंड एविडेंस में आपको दूं कि जो इजराइल के अंदर अमेरिकन एम्बेसडर है, उनका बयान है कि इजराइल इज नॉट फाइटिंग फॉर इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट एंड सर्वाइवल, इजराइल इज फाइटिंग फॉर पैराडाइज। ये जंग है जन्नत की और जहन्नुम की। ये जंग कोई राइट विंग और लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स की नहीं है, ये जंग है ईसाइयत की, ये जंग है हमारे सिविलाइजेशन के लिए जो इजराइल लड़ रहा है। और यही अकीदा इस वक्त फार राइट जो पॉलिटिक्स है, जिसको क्रिश्चियन राइट मूवमेंट कहा जाता है, और खुद पेंटागन के अंदर वो काफी हद तक पेनिट्रेट कर गई। उनका अपना टेलीविजन नेटवर्क है और 2007-8 तक मेरे पास इसकी फिगर थी, तकरीबन कोई लगभग 20 मिलियन लोग इसके फॉलोवर थे, अब तो बहुत ज्यादा हो गए होंगे। उनका नजरिया भी है कि वी हैव टू सपोर्ट इजराइल बिकॉज दिस इज इजराइल, जिसकी वजह से ऐसे हालात पैदा होंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम वापस आ जाएंगे दुनिया के अंदर और फिर ईसाइयत का दौर दौरा हो जाएगा।
तो लिहाजा जो सुपर स्ट्रक्चर है दैट इज प्लेइंग रोल अगेन इन शेपिंग अप द बिहेवियर ऑफ इजराइल, और इजराइल का भी रोल उसी अंदाज से हमें नजर आता है। रीजन, और वो रीजन जरा रिलीजन से हटके है कि क्यों इजराइल की सपोर्ट की जाती है। बिकॉज जो इजरायली लॉबी है, जूइश लॉबी मैं नहीं कह रहा, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट इजरायली लॉबी, बिकॉज इजरायली लॉबी के अंदर जूइश भी हैं, लोग भी हैं, और नॉन जूइश यानी क्रिश्चियन लोग भी हैं। एंड दे हैव अ कंट्रोल ओवर अमेरिकन इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन एंड मीडिया। उन्होंने ऐसा जाल बुना हुआ है अमेरिका के अंदर जिसके तहत जो रूलिंग एलीट है वो मूव नहीं कर सकता, और अगर वो मूव करता है एज पर जेरूशलम पोस्ट, तो इनके पास ऐसे सीक्रेट्स हैं इनके कि ये इनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा मोनिका लेविंस्की का केस, जिस वक्त बिल क्लिंटन ज्यादा क्रिटिकल था टू स्टेट सॉल्यूशन के हवाले से और इसराइल पे एक प्रेशर बिल्डअप करना चाह रहा था, बिकॉज वो भी नोबेल पीस प्राइज लेना चाहता था, अच्छा नाम तारीख में छोड़ना चाहता था। तो मोनिका लेविंस्की का केस सामने आ गया और उसके पसीने छूट गए। और मोनिका लेविंस्की वो थी जो विदाउट एनी पे व्हाइट हाउस के अंदर घुसी और प्रेसिडेंट क्लिंटन के बहुत करीब तर रही। इसी तरीके से आज अगर आप देखते हैं ये जो चार्ली क्रिक की एसेसिनेशन है, इसके बाद एक और बयानात भी आ रहे हैं कि खुद प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े डरे हुए हैं कि गालिबन वो भी टारगेट ना हो जाएं। और चार्ली क्रिक ने कई दफा अपने दोस्तों से कहा कि ऐन मुमकिन है कि इजराइल उन्हें मरवा दे। बिकॉज अभी जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जरा प्रेशर बिल्डअप किया इजराइल के ऊपर, और आपने देखा कि इस तरह के उनके बयानात भी आए जिसमें उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इजराइल के लिए इस्तेमाल किए, स्पेशली जब वो बेल्जियम जा रहे थे नेटो के इजलास में शिरकत के लिए। तो उसके बाद आपने एप्स्टीन इन्वेस्टिगेशन फाइल का तस्करा सुना, जो कि बड़ा सीरियसली डैमेज कर सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप को। तो दूसरे लफ्जों में जो इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो डायलेमा के शिकार हैं, एक तरफ बिलीफ सिस्टम, दूसरी तरफ जो स्ट्रॉन्ग इजरायली लॉबी, और तीसरी तरफ अमेरिकन इंटरेस्ट, जहां पे वो चाहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट के तहत वो आगे मूव करें, लेकिन वो मूव कर नहीं पा रहे। इस तरह से वो इंटेंगल्ड हैं। एंड लेट मी वन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, माय ओन ऑब्जर्वेशन। I was on the course of security policy making in America. I myself observed one of my colleague was from Israel, और मैंने ऑब्जर्व किया कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उसके सामने ऐसे उसकी खुशामद करते थे, दूसरे लफ्जों में ऐसे सजदा रेज होते थे जैसे उनकी प्रमोशन इसके हाथ में। तो इस हद तक इन्फ्लुएंस है। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द रिलीजियस फैक्टर। और आखिरी एग्जांपल दूं और उसके बाद मैं अपनी इसको खत्म करूंगा ताकि सवाल जवाब में फिर डिबेट को आगाज चलें। इवन यूरोप की अगर आप प्रेसिडेंट को सुने तो उनकी तरफ से जो बयान आया है वो भी बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वी आर क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, और बिकॉज ऑफ दिस क्रिश्चियन सिविलाइजेशन हमें अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए, एंड देयरफॉर दे आर ओपनली सपोर्टिंग इजराइल। और यहाँ पे खुद अपनी जो फिलॉसफी है जिसका वजूद एनलाइटनमेंट के बाद वजूद में आया, यानी लिबरलिज्म, उसको भी निगेट करते हैं। बिकॉज लिबरलिज्म के दो फाउंडिंग स्टोन्स हैं। वन, डॉक्ट्राइन ऑफ सैल्वेशन, जो इस बात पे यकीन रखता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे वांट हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस लाइज इन पीस, एंड इफ यू विल फॉलो द ओपिनियन ऑफ द पीपल यू विल गो फॉर पीस नॉट फॉर वॉर। सो गवर्नमेंट अगर लोगों की राय के ऊपर होगी तो वो हमेशा अमन की तरफ जाएंगे, जिसको डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी भी कहा जाता है। और दूसरा, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट, जो आदम सिमिन ने दिया कि जो मोरालिटी है वो क्या है, मईशत हकीकत में खुद अखलाकियात है। बिकॉज जो कुछ आप करते हैं वो अपने फायदे के लिए नहीं करते, दूसरों के फायदे के लिए भी करते हैं। ये दो फाउंडिंग स्टोन्स हैं। आज उसी की निगेशन नजर आ रही है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से। दे आर कंप्रोमाइजिंग देयर लिबरल फिलॉसफी एज वेल, जब दे आर ओपनली सपोर्टिंग इजराइल अगेंस्ट देयर ओन पब्लिक ओपिनियन, जिसका तस्करा मैंने आपको दिया कि जितने सर्वेज हो रहे हैं अमेरिका में, खुद अमेरिकन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वे जिसमें 93% ऑफ अमेरिकन यूथ दे थिंक के इजराइल को खत्म करके इसे हमास के हवाले कर दिया जाए, या खुद न्यूयॉर्क का जो इलेक्शन एंड सर्वे आ रहे हैं जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 58% से इजराइल की सपोर्ट गिरकर 18% में रह गई है, खुद राइट विंग पॉलिटिक्स के अंदर। या चार्ली क्रिक का जो आइडिया तब्दील होते हुए हमें नजर आया, या वेस्ट के अंदर लाखों की तादाद में जो डिमॉन्स्ट्रेशंस और 2.5-3 लाख ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और आए दिन आप देख रहे हैं, और इस वक्त
फ्लोटिला जिस तरह से 40 ममालिक के नॉन मुस्लिम नेशन, पाकिस्तान से सिर्फ एक फर्द गया हुआ है, इनका मूव करना बता रहा है कि पब्लिक ओपिनियन क्या है. बट इवन देन governments, they are negating their public opinion and they are supporting Israel. Question is why? The answer is superstructure, the belief system. The belief system of Christianity that believes कि Israel इस हद तक निज़ाम को derail करेगा कि Christ would come back and again दुनिया के अंदर पूरी ईसाइयत छा जाएगी. I end here. If you have any question, you may ask. Thank you. Thank you so much, sir, for such a great perspectives and insights. Participants, if you have any question, Dua Fatima. Amna, please read the question from the check box. Thank you. Oh, okay. Sir, we have a question. Given Qatar's strong relations with the United States, could an attack on Qatar push Middle Eastern states to unite, potentially shift regional alliances and trigger an oil crisis? मैं आपकी पूरा सवाल नहीं अंडरस्टैंड कर पाया. अगर इसको दोबारा रिवाइज करें, बिकॉज आवाज आपकी उसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है साउंड के अंदर. Sure, sir. No, I'm audible, sir? जी जी, जरा लाउडली बोलिएगा. Okay. Sir, question is that given Qatar's strong relations with the United States, could an attack on the Qatar push Middle Eastern states to unite, potentially shift regional alliances and triggers an oil crisis? OIC summit के बाद I would say no, because of three important reasons. अच्छा, let me give you one assumption first. That civilizational factor or the belief system is a major variable. I do not say the only variable. The major variable that pushing America and the West to support Israel. And the major variable in the case of Israeli behavior vis-a-vis the Muslim world. But that very variable in the case of OIC is not working, by the way. And why this variable is not working in the case of the Arab world and working in the case of non-Arab world? Let me give you one example. जब इंडिया पाकिस्तान का क्राइसिस सिचुएशन शुरू हुआ मई 7 से लेकर और आगे, इन 6 दिनों के अंदर आपने देखा होगा कि मुस्लिम वर्ल्ड डिड नॉट ओपनली सपोर्ट पाकिस्तान एक्सेप्ट 2 nations, अजरबैजान एंड टर्की, और एक चाइना विच इज नॉन मुस्लिम नेशन. So it means कि ये variable is not working in the case of the OIC. और ये तो पाकिस्तान की military capability, credibility and will थी, because of which we defeated India within 6 hours. और ये मौजज़ा है आज की जंगी हिकमत अमली के अंदर. इसी तरीके से जब ईरान पे हमला हुआ इजराइल का, तो यू ऑब्जर्व के सवाए बयानात के चंद ममालिक से, अदरवाइज मुस्लिम नेशन डिड नॉट ओपनली सपोर्ट. बट पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री जिसने बड़ा खुला के ईरान को सपोर्ट दी. वो कि हमारे ईरान के ऊपर डिफरेंसेस माजी में भी रहे और अभी भी थे, बॉर्डर इश्यूज के ऊपर, सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर, या ईरानी स्टांस के ऊपर, या अफगानिस्तान में जो कुछ होता रहा, लेकिन सवाए पाकिस्तान के कोई खड़े हुए नजर नहीं आया. इसी तरीके से कतर का मामला हुआ तो ओआईसी में जिस तरह सोमालिया के साथ मिलकर पाकिस्तान ने जिस तरह एम्बेसडर अहमद ने स्टांस लिया, इट वाज अमेजिंग, जिसपे इजराइल को माफी मांगनी पड़ी. एंड इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द यूनाइटेड नेशन जहां पे इजराइल डिप्लोमेटिकली अपोलोजेटिक रहा वीजा वी पाकिस्तान. कहने का मकसद मैं आपको ये बता रहा हूं कि दिस वेरिएबल मीटिंग सर 1 मिनट में एंड होने वाली है, उसके बाद सेम ही हम लिंक से ज्वाइन करेंगे. थैंक यू वेरी मच. अच्छा ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम. थैंक यू सर. तो कहने का मकसद ये कि ये वेरिएबल काम नहीं कर रहा इस वक्त मुस्लिम दुनिया के अंदर. होना तो ये चाहिए था कि ओआईसी की तरफ से रिस्पांस आता. कुछ नहीं आता. आप हमला नहीं करते, रिटेलिएट नहीं करते. पाकिस्तान